Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the 8th lecture on the course Organizational Behavior. So before proceeding on what we have for this lecture, let's have a recap of 7th lecture. As you know that we finished the motivation theories for the in our previous 2 lectures, and we had a detailed discussion on the various motivation theories, and there were basically the 3 groups of motivation theories that we had discussed. One was the need-based, the other one was the cognitive theories, and lastly we discussed the reinforcement theory, right? And we also discussed the implications of these theories for the managers, for the organizations, and how they can benefit from application of these theories, right? And now for today's lecture, we are going to discuss some of the applications of the motivation theories, and we are going to see how we can redesign the work environment benefiting from the motivation theories in a way that employees can be motivated, right? So what we are going to do in this lecture basically is that we are going to incorporate the motivation theories, or we are going to benefit from the literature on motivation, and we are going to see that how managers, so it is basically an extension of the application of the motivation theories. So herein we are going to see that how managers can benefit from the motivation theories, from the literature on motivation, and how the jobs at the workplace can be designed or redesigned in a way that can keep the employees motivated and that can help the managers take maximum benefit out of the employees, because as we see that motivation is directly linked to employee outcomes, it is directly linked to employee engagement, to employee involvement. Motivation is directly linked to employee turnover intentions, their intentions to stay, or their quit intentions. And then motivation is also linked to a number of other variables, such as their organizational commitment of the employees, the productivity and performance of the employees. So they are all the factors which are largely determined by the employees' motivation levels. That is why we study motivation, and that is why we focus motivation in the various domains that are studied. Motivation is one of the key topics because of its importance and because of the factors on which it influences in the workplace. So it influences the critical factors, the factors that are critical to the organizational working, to the organizational survival, to the organizational effectiveness. So motivation affects all those factors, right? And it has always been a hot topic of research, that how to keep the employees motivated. So it's a question mark: how to keep employees motivated, how to make the employees motivated, how to keep them staying as motivated workers, right? So that is a challenge, because sometimes what happens is that when the employee initially enters the organization, the employee has very high spirits, the employee is motivated when he starts working with the organization, because there is a psychological contract is established between the employee and the employer. Psychological contract is we call a psychological contract when there is a psychological bond, psychological understanding between the employer and the employee when they sign an employment contract, which is a formal contract. When formally the employer gives the contract to the employee that okay, you are hired. That there is an employment contract, you must be familiar, and that is signed by the employee and countersigned by the employer, and that is kept in the office and also in the personal file of the employee. When that contract is signed, that is a formal contract, and this contract contains all the important elements of the job, such as what will be the job description, whom the employee is going to report, what he's going to report, and what he's supposed to work, what has his exact job duties, how much number of hours he's going to work, what he will be paid, for how long is this contract for, etc. Right? So all this information is available in that employment contract, and that is a formal piece of document. But there is another contract also that is established between the employee and the employer, which is psychological contract, which means that it is not a written contract, it's not a formal contract, but it is in the mind, it is in the brain of both the employee and the employer. When they have interaction with each other during the interview, for example,
At that time, they both develop certain expectations about each other, that he will do this, I will do that, he will do that, I will do this, etc. Right? And they have certain unwritten promises also between them. So when the employee starts working with the organization, initially his level of motivation is very high, but then normally what happens is when the employee keeps on working in the organization and he or she feels that certain parts of the promises or the psychological contract that was established between the employee and the employer at the time of the interview, that is not being meeting, that is being breaking, so then we call that a breach of psychological contract, and that leads to reduced or lowered motivation on the part of the employee. Right? And that's what normally happens, that initially when you start working with the organization, you're in very high spirits, but then when the time passes, when you are more familiar with the culture of the organization, then the negatives of the organization or the difficulties in the organization or the difficulties of the work or the nature of the work or of the work environment, the challenge that was you were perceiving earlier, that in actual that might be more difficult than you had perceived it, because initially when you apply to the organization, when you have interview with the employer, etc., you get very positive feedback from the employer about the organization, because employer is going to portray the image of the organization as a very positive and healthy organization and a good organization to work for, because of course the employer is searching for a good prospective candidate, right, to be an employee to fill in the position. Therefore, of course, the employer will portray a very positive image of the organization, and similarly, the employee does the same. When you are a prospective candidate, when you go for an interview, you also exaggerate your position, exaggerate your qualifications, your experience, your strengths, and they might be much exaggerated than they actually are. And when you actually start working in the organization, the employer feels that the promises that you had made with the employer at the time of the interview, they are not being met. So it is two-way around. It is the both ways, or it can happen one way or it can happen both ways. But when this case happens, we call it the breach of psychological contract, and it has the influence on the employees in terms of employees' motivation is lowered, and as a result all those consequences are faced by the employee in terms of his attitudes and behaviors, as we discussed, which are in the case of lowered employee motivation and lowered employee outcomes, which are the outcomes that with which the motivation is associated. So those outcomes are also lowered, such as the commitment is lowered, loyalty with the organization is lowered, your engagement in the work is lowered, involvement in the work is lowered, and your turnover intentions might increase, your absenteeism might increase, your productivity might lower, and your performance overall might lower. Right? And then of course this kind of motivation problems, they arise in the organization, and herein we are going to see these are all the different motivation theories that we studied already. They are basically an explanation of how to deal with the motivation problems. They can provide us with the understanding, with the guidance on how we can deal with the motivation problems. For example, this just brings in my mind that there is such as a theory, there are different approaches to deal with the employee's motivation, that if the employee is demotivated, how to deal with it. Some say that you need to improve the cooperation, just simple. If the organizations are smaller and it's an owner manager who is running the organization, then in such cases you can just improve the cooperation between the owner manager and between the employee, and then just improvement of the cooperation can reduce or eradicate these motivation problems, and the employee can be motivated again. But if the organization, some say that there is another pluralist approach to dealing with these motivation approach, which says that merely a communication improvement may not be enough, but what you need to do is that you might need to improve the rewards and other working conditions of the employees in order to keep them motivated. So they are basically the unitarist and the pluralist approaches to dealing with the motivational issues that arise out of these. And also the motivation issues arise because, there are, as we studied in the theories, there are a number of factors, there are a number of reasons that can keep the employees motivated. So it's not only the external factors, not only the monetary factors, not only the rewards, but also the intrinsic factors. So it is a combination of these factors that should be provided by the organization. In what combination you have to provide these factors, that depends upon the nature of the employees as well. So you need to understand what kind of employee you're dealing with.
राइट तो इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की थी एंड आई हैड गिवन यू एग्जांपल दैट मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड द मॉनेटरी बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मे नॉट बी मटीरियल फॉर वन एम्प्लॉई बट दे माइट बी वेरी मटीरियल फॉर एन अदर एम्प्लॉई तो वो एम्प्लॉयज जिनकी फॉर एग्जांपल नीड फॉर अचीवमेंट इज हु आर वेरी हाई ऑन नीड फॉर अचीवमेंट दे माइट गिव मोर वेटेज टू द conducive working environment in which they can flourish, they can nurture their growth possibilities, right? And for them the rewards and the monetary benefits, they may not be a good advantage, or they may not be a good incentive to work for. So if those employees are not provided the working conditions that are supportive to for their inner growth and for their intrinsic satisfaction, such employees may be demotivated and they may ultimately quit the organization, or they can show another number of range of behaviors. Therefore, it's important for the organization to understand what kind of motivation the employee has, and how the organization has to satisfy the different needs of the different employees. And when we discuss this cognitive evaluation theory, in relation to that, there is also the concordance theory of motivation, which is basically an extension of the CET, and that says that organizational goals, they must be aligned with the individual goals. So if the organization is if the individual goals are not aligned with the organizational goals, again you're going to have motivation problems, right? So if for example, if the organizational goal is that intake of as much students in a university as possible, and for that a teaching load on you, so they require you to teach a number of courses, for example 4, 5, 6. So this means that organizational, when you teach this much courses, organizational goal is going to be satisfied, but it may not satisfy your personal goal, and your personal goal might be research and development, right? So there is a clash between between the personal and the organizational goal, right? And when there is such a clash, then of course it's going to lead to motivation issues, right? And such clashes, the organization must understand that what are the goals of the employees, and it should, of course, this is not a goal of any organization to meet the goals of the employees. That is the case. That is not definitely that is not so. But an organization, it's upon the organization to understand that what are the different motivations of the employees, and preferably whether there is a fit between the person and the organization. If there are any issues of misfit between the person and the organization, or between the person's values or his personal or her personal values and the organizational values, then this kind of misfit should actually be identified right at the time of the selection and interviewing of the candidate, before he becomes the employee of the organization. Because after he becomes the employee of the organization, then such issues can become grave, and they can become a big trouble for the both the employee and for the organization, and it means that it has been wrong hiring done by the organization, and it of course bears very heavy costs. Okay, so this is what on motivation, that how the employees are demotivated, and these were the theories that we discussed, that how they guide us in respect to the different motivational issues. So आपने देखा है कि हर theory अपनी एक explanation provide कर रही है, और entirely different explanation provide कर रही है, but सारी theories को when we look them in integration, तो हर theory के कुछ unique aspects हैं जो हमें ऐसी information दे रहे हैं which is very valuable information and from which we can learn a lot, और जिसकी बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन और पर्सपेक्टिव है, एंड दैट विच शुड नॉट बी मिस्ड. सो फॉर एग्जांपल, और हर थ्योरी की अपनी एडेड वैल्यू है, ठीक है, और उसका अपना आउटकम है. सो वी कैन नॉट से हर थ्योरी के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स तो डेफिनेटली हमेशा होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि दिस थ्योरी इज मोर इम्पॉर्टेंट और दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और दिस थ्योरी इज रिडंडेंट और दिस इज नॉट वैल्यूएबल. एवरी थ्योरी हैज इट्स ओन वैल्यू. फॉर एग्जांपल, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी आपको सेल्फ एफिकेसी पे एम्फसाइज करती है, ठीक है. इसी तरह द रीइंफोर्समेंट थ्योरी इट एम्फसाइजेस on how you can align the behavior of the employees by reinforcing positively and negatively the previous behavior that has been shown by the employee. Similarly, we discussed that equity theory discusses the input output ratios, कि कैसे आपने इनपुट आउटपुट रेशो को बैलेंस करना है इक्विटी परसेप्शंस को एम्प्लॉयज में इन्हांस करने के लिए. तो देखें, और फिर क्योंकि अगर आप नहीं बैलेंस करेंगे इनपुट आउटपुट रेशो में, अगर बैलेंस नहीं होगा अपने रेफरेंट अदर्स की, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगेन मोटिवेशनल इश्यूज अराइज होंगे, ठीक है. इसी तरह रीइंफोर्समेंट में क्या है कि रीइंफोर्समेंट जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे तो उससे
वो एक मोटिवेशन होगी एम्प्लॉइज के लिए टू शो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर और टू रिफ्रेन फ्रॉम बिहेवियर ऑन विच नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हैज बीन गिवन। तो ये डिफरेंट, और फिर ये देखें कि ये सारी चीज़ें अगर हम इनको ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर हम इफ़ वी कीप दीज इन माइंड एंड इफ द मैनेजर्स बिहेव अकॉर्डिंगली एंड वाइल कीपिंग ऑल दीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन माइंड, दे कैन डेफिनेटली ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, और वो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं मैनेजर्स को कि ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को कैसे बिहेव करना चाहिए, या उनको उनके बिहेवियर्स को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है, उनको मैक्सिमली बेनिफिट उनसे कैसे किया जा सकता है। तो ये हमने डिफरेंट इम्प्लीकेशन पढ़ी थी इस थ्योरी की, इन थ्योरीज की। तो टुडे जैसे मैंने आपको बताया कि हम कॉन्सेप्ट्स टू एप्लीकेशन मूव करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम जॉब रीडिज़ाइन को देखेंगे आज। तो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि एजेंडा क्या है हमारी आज की डिस्कशन का। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल फॉर टुडे। ठीक है, हम देखेंगे कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके आउटकम्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है ये। देन वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द जॉब्स कैन बी रीडिजाइंड। ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीडिजाइन द जॉब्स एंड हाउ दे कैन बी रीडिजाइंड। देन वी विल बी सीइंग द ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो आपने व्हाई ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट्स अगेन। ठीक है, तो ये हम सारी डिस्कशन आज करेंगे और फिर वील कंक्लूड दिस लेक्चर फॉर टुडे। तो आइटम्स जो हैं आज के एजेंडा आइटम्स तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हम इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इनकी इम्प्लीकेशंस देखने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और इनका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, सो दैट आपके पास आपके सामने एक थ्योरेटिकल अप्रोच ना हो, सिर्फ आपके सामने अप्लाइड पर्सपेक्टिव हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजियर हो। और जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं सेशंस में या पेपर्स में, तो इट्स ईजियर फॉर यू टू एड्रेस देम, बिकॉज दे कुड बी केस स्टडी और दे कुड बी any type of applied questions भी हो सकते हैं, conceptual questions भी हो सकते हैं। तो thus these examples and the way I'm explaining them, that should be able to enhance your understanding from a practical perspective. Okay, so the first thing that we are going to discuss is the job design theory, because मैंने आपको ये बताया कि हमने why study job design theory। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैंने आई जस्ट टोल्ड यू कि मोटिवेशन के बारे में हमने बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन की। फिर अब ये जो हमें अपकमिंग 2 लेक्चर्स हैं, आज वाला और इससे अगला, ये हमें बेसिकली इनमें हम यही देखेंगे कि हम बेनिफिट कैसे कर सकते हैं इन मोटिवेशन थ्योरीज के साथ, बाय इम्प्रूविंग द वर्क एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सो दैट एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड मोर। तो हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। ठीक है, या डिफरेंट जो HR की इंटरवेंशंस हो सकती हैं वो, और वो एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, वो चीज़ें, उनको क्या लिंकेजेस हैं और उनका फिर अल्टीमेटली आउटकम्स क्या हैं, और एम्प्लॉय बिहेवियर्स के ऊपर कैसे वो इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, कि ये चीज़ें कैसे रीडिज़ाइन, आप कैसे, हाउ टू रीडिज़ाइन योर जॉब्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। सो दिस कैन बी द क्वेश्चन, that how you can redesign your jobs to motivate the employees, or how the jobs can be redesigned to keep the employees motivated. अच्छा, इसमें फर्स्ट तो आ गया हमारा जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। The model basically, it's a very old model. Basically, I think it was given in 1970, probably by Heckman and Lawler, I think. Yeah, and this you will get the exact reference from your book. The model basically says it identifies 5 job characteristics and their relationship to personal and work outcomes. ठीक है, तो 5 job characteristics इस मॉडल ने दी। On the basis of these characteristics, it has linked those characteristics at job with the personal and with the work outcomes, organizational outcomes. तो वो characteristics क्या थी और वो कैसे लिंक अप हुई हैं वर्क आउटकम्स या ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स के साथ, वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट वन इज द skill variety, second one is the task identity, third one is the task significance, fourth one is the autonomy, and the last one is the feedback. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये बेसिकली, और बड़ी अप्लाइड और पर्सपेक्टिव है इसका। बेसिकली देखते हैं ये थ्योरी फर्दर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल सेज दैट जॉब्स विद स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी,
autonomy, feedback, task significance, right? They directly affect the three psychological states of employees. That is the knowledge of results, meaningfulness of work, personal feelings of responsibility for results. And then in turn, these psychological states, they increase the motivation of employees' performance and job satisfaction. तो क्या है कि आपके पास एक मॉडल आपके सामने आ गया, ठीक है. लेट्स सी कि हमारे पास ये मॉडल शायद फिगर में अवेलेबल हो. या वी हैव दिस मॉडल हियर. सो लेट्स सी इट फ्रॉम दिस. You can see that on the left hand side there are the core job dimensions जो हमने देखी. skill variety है, tasks identity है and task significance, and then we have the autonomy and we have the feedback. So all these things what they're doing are that they're influencing the psychological states, critical psychological states को ये influence करती हैं तीनों चीजें, such as the experienced meaningfulness of the work, experienced responsibility for outcomes of the work and knowledge of the actual results, and as a result personal and work outcomes आपके influence होते हैं कि in terms के वो positively influence होते हैं. तो अब हम तो ये मॉडल है, ठीक है. इस मॉडल में आप ये देखें कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जैसे कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो डिटरमिन कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है. दे आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी ये वो वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. दे आर कॉजिंग, तो ये कॉज है. और जो राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम राइट पे हैं आपका जो कॉलम है पर्सनल वर्क आउटकम्स का, दे आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी ये वो चीज़ें हैं जो डिपेंड कर रही हैं ऑन द वेरिएबल्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. तो आप ये देखें कि और मिडिल में क्या है, क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स है मिडिल में. क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स बेसिकली आर द मीडिएटर्स, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर्स हियर, राइट. अभी लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड अगेन and see that what are these different elements of the characteristic model. इनको पहले समझ लें कि ये हैं क्या. तो पहला है इनमें skill variety. So skill variety is the degree to which a job requires a variety of different activities. ठीक है. How many different skills are used in a given day, week or month. ठीक है. तो आपको कितनी how many different skills are in used. ठीक है. तो अगर आप for example you're doing a work somewhere, या कोई भी एम्प्लॉई है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम कर रहा है तो उसकी जॉब जो है उसमें कितनी मोनोटनी है. वो रूटीन लाइक टास्क कर रहा है, वो डेली सेम टास्क आके करता है रिपीटेडली, या वो उसमें वैरायटी है उसकी जॉब में. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ बैंक, ठीक है. तो एक बैंक में अगर एक कैशियर है, ठीक है. तो कैशियर क्या कर रहा है, कैशियर प्रोसेस करता है चेक्स को और वो आपको पेमेंट करता है. दिस इज व्हाट अ कैशियर डज, राइट. तो ही रिसीव्स द चेक एंड ही गिव्स यू पेमेंट्स, ठीक है. तो ये दिस इज द वर्क ऑफ अ कैशियर. वो आपका और फिर इसमें क्या है, रूटीन लाइक टास्क है. इट इज़ अ वेरी रूटीन लाइक टास्क एंड दस इट इज़ अ मोनोटनस टास्क. इसमें कोई वैरायटी नहीं है. देयर इज़ नो वैरायटी इन हिज वर्क व्हाटसोएवर. ऑन द अदर हैंड अगर आप उसी बैंक में किसी क्रेडिट डिपार्टमेंट में चले जाएं या होम लोन डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी क्लाइंट्स ही आते हैं, ठीक है. वहाँ पे भी एक मैनेजर या जो क्रेडिट ऑफिसर है उसके पास क्लाइंट्स ही आते हैं, लेकिन उस काम की नेचर बहुत डिफरेंट है. वहाँ पे हर क्लाइंट अपनी एक डिफरेंट एप्लीकेशन लेके आता है. सारी लोन की एप्लीकेशंस ही हैं, सारी लोन की रिक्वेस्ट ही हैं, ठीक है. लेकिन कोई इंडस्ट्री से आ रहा है, कोई जो है वो पर्सनल लोन के लिए आ रहा होगा. अगर इवन विद इन पर्सनल लोन ऑफिसर ही है एक, यानी वो ऑफिसर जो सिर्फ पर्सनल लोन्स को डील कर रहा है, तो उसमें भी पर्सनल लोन के भी केसेस देखें कितने डिफरेंट होंगे, एप्लीकेशंस कितनी डिफरेंट होंगी, उनकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होगी, बिकॉज हर किसी का केस डिफरेंट होगा. किसी को आप रिजेक्ट करेंगे, किसी को एक्सेप्ट करेंगे, किसी की एप्लीकेशन को, उनकी इवेल्युएशन होगी, ठीक है. और वो इवेल्युएशन बड़ी सब्जेक्टिव होती है समटाइम्स. मतलब ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी होते हैं और उसके सब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी होते हैं. आप सब्जेक्टिव भी इवेल्युएट करते हैं कि वाकई भी अगर मैं इसको इफ आई गिव एक्सटेंड इसको इतना लोन कर दिया जाए या सैंक्शन कर दिया जाए इसको इतना लोन, तो क्या इसके पास कैपेसिटी है उसको पे बैक करने की, एंड हाउ ही कैन जस्टिफाई दैट कैपेसिटी. तो वो एक सब्जेक्टिव इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन दैट केस, इन दोज केसेस, ठीक है. वहां पर आपका मेंटल प्रोसेसेस आर टू बी यूज्ड, ठीक है. वहां पे मेंटल प्रोसेसेस यूज होते हैं, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड इस केस में, कैशियर वाले केस में कोई मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. और ये एक मतलब जस्ट अ रूटीन लाइक एक्टिविटी एंड इट्स अ मोनोटनस टास्क. इसमें कोई वैरायटी नहीं है. तो दिस इज स्किल वैरायटी, कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपकी जॉब है उसमें कितनी वैरायटी है.
कितनी डिफरेंट स्किल्स इन्वॉल्व हैं। तो अब उसमें तो देखिए आपके मेंटल स्किल्स भी इन्वॉल्व हैं क्रेडिट वाले काम में, और उसमें आपकी फिजिकल स्किल्स भी इन्वॉल्व है, मेंटल भी इन्वॉल्व है, हर तरह की स्किल्स आपकी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बट इस काम में आपके मेंटल स्किल्स कोई इन्वॉल्व नहीं है, राइट। और इसी तरह ही अगर टास्क आइडेंटिटी इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस जॉब डिजाइन और कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, एंड टास्क आइडेंटिटी सेज द डिग्री टू विच द जॉब रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ अ होल एंड आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ठीक है। तो आप फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आपको you should be able to identify with the task, that you should be able to own the task कि मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो वो उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टेबल है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो उसमें वहाँ पर अगर वो टेबल फर्नीचर वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, तो अगर इफ somebody is assigned the job or of making the leg of a table, so he has to make only the legs of the tables, तो इसमें क्या है कि उसको वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इस टास्क के साथ। इट्स नॉट अ वेरी कंप्लीटली आइडेंटिफाइबल टास्क नहीं है, बिकॉज वो दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टेबल ऑफ द आउटपुट का, या जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है उसका सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो कोई एज सच आइडेंटिफाइबल टास्क नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आइडेंटिटी के हाउ मच यू कैन आइडेंटिफाई विद द टास्क दैट यू हैव डन इट, और वो जितना कंप्लीट और होल टास्क होगा उतनी ही आप उसके साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब ऑफ कोर्स अगर आप देखें ना, अगर कोई एक एप्लीकेशन है जैसे क्रेडिट एप्लीकेशन है, अगर आप यू हैव यू ओनली इफ एक केस तो ये होता है, कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट स्टेप्स बनाए होते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं, ये क्या होता है कि जो एक उन्होंने ऑफिसर बिठाया होता है वो सिर्फ एप्लीकेशंस कलेक्ट करता है और वो आगे फर्दर भिजवा देता है क्रेडिट डिपार्टमेंट में या प्रोसेसिंग यूनिट में, वो फिर उस एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अब जो ऑफिसर है जो जस्ट कलेक्टिंग द एप्लीकेशंस, अब उसकी क्या है, वो आइडेंटिफाइबल टास्क नहीं है, इज ओनली कलेक्टिंग द एप्लीकेशन, वो उसको फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड नहीं कर रहा है उस काम को, यानी वो ना उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है ना उसको रिजेक्ट करने की पोजीशन में, ही डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी, राइट। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीटली आइडेंटिफाइबल टास्क। इसी तरह ये जो टेबल का केस है इसमें भी इट इज नॉट अ कंप्लीटली आइडेंटिफाइबल टास्क। इसी तरह अब नेक्स्ट जो इसके पॉइंट है वो है टास्क सिग्निफिकेंस। टास्क सिग्निफिकेंस क्या है? टास्क सिग्निफिकेंस इज द डिग्री टू विच द जॉब हैज अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स और द वर्क ऑफ अदर पीपल, ठीक है। तो अब आपको सिग्निफिकेंस क्या है उस टास्क की, ठीक है। इज दैट एन इम्पॉर्टेंट टास्क और नॉट? तो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक क्लर्क है तो ऑफ कोर्स वो इतना सिग्निफिकेंट काम नहीं कर रहा उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना सिग्निफिकेंट काम एक मैनेजर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी टास्क सिग्निफिकेंस है उस काम की जो एक मैनेजर कर रहा है, उसकी वैल्यू एडिशन भी बहुत ज्यादा होगी, ऑर्गेनाइजेशन की मच मोर होती है। दैट इज व्हाई द मैनेजर्स आर पेड सो हाई, बिकॉज उनकी वैल्यू एडिशन जिस तरह का काम वो कर रहे होते हैं, जितने मेंटल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो उनकी नेचर ऑफ जॉब होती है, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। जो ऑन द अदर हैंड जो क्लर्क का काम है वो मोनोटनस है, रेपिटेटिव है, उसमें कोई मेंटल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और उसमें कोई मेंटल एबिलिटीज डज नॉट चैलेंज योर मेंटल एबिलिटीज और योर मेंटल कैपेसिटीज, और आपकी उस तरह की जो स्किल्ड हैं, स्पेशलाइज स्किल्स उनमें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और हाईली स्किल्ड वो काम नहीं है, ठीक है। वो जेनरिक नेचर ऑफ वर्क है और मोनोटनस वर्क है और रिपीटेड नेचर का है, ठीक है। तो और उसकी इतनी सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो इसलिए सिग्निफिकेंस काम की जो है वो टास्क की सिग्निफिकेंस कितनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन वो टास्क सिग्निफिकेंस इज दैट कि आपके काम जो आप कर रहे हैं हाउ सिग्निफिकेंट दैट वर्क इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत क्रिटिकल नेचर के होते हैं, कुछ काम इतने क्रिटिकल नहीं होते, और जो जैसे कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वांट टू लेट गो दोस पीपल बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग क्रिटिकल टास्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका एक्सपीरियंस भी इतना हो चुका होता है क्रिटिकल टास्क्स को परफॉर्म करने का, तो वो खुद भी क्रिटिकल हो जाते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज दे हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दैट जॉब, दे आर रियली फेमिलियर विद द निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट जॉब, एंड देयरफॉर दे बिकम रियली क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं बेसिकली बिकॉज दे आर डूइंग द सिग्निफिकेंट वर्क, सिग्निफिकेंट टास्क ऑर्गेनाइजेशन में वो कर रहे होते हैं, दैट इज वाई दे गेन दैट क्रिटिकल वैल्यू। उसके बाद भी देखते हैं हम ऑटोनॉमी को। सो ऑटोनॉमी, ये तो तीन चीज़ें हो गई, टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद जो ऑटोनॉमी है और फीडबैक है कि वो जो काम जो टास्क आपको दिया गया है वो तो उनकी नेचर हो गई ना टास्क की, कि वो किस किस्म का काम है, उसमें वैरायटी है नहीं है, कितनी स्किल सेट आपका रिक्वायर्ड है। ऑटोनॉमी इज बेसिकली दैट जो काम आपने करना है, जो टास्क आपने करना है, उसमें आपके पास इंडिपेंडेंस कितनी है।
हाउ मच अथॉरिटी आपके पास उसमें कितनी है कि यू कैन मेक डिसीजंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टास्क दिया गया है, तो योर मैनेजर इज असाइंड यू अ गोल और अ टास्क, यू हैव टू डू दिस, उसमें देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू डू दैट टास्क, ठीक है। तो आपके पास autonomy is that how much authority or capacity you have that you can do it on your own and you have to only to show the results to your manager, ठीक है। whatever way you adopt, कौन सा वे आप अडॉप्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेसेस यूज करेंगे, यू शुड हैव दिस अथॉरिटी, और इफ यू हैव दिस अथॉरिटी इट मीन्स दैट यू हैव ऑटोनॉमी टू डू इट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये टारगेट मिल जाए दैट यू हैव टू प्रोड्यूस 3 रिसर्च पब्लिकेशंस, अब मैं वो हाउ डू आई प्रोड्यूस देम, दैट इज माई टास्क, वो उसमें मेरे पास सफिशिएंट ऑटोनॉमी है और होनी चाहिए, ठीक है। कि मैं उसमें कितने आवर्स काम करूं, डेली में 2 आवर्स काम करूं या एट द एंड ऑफ द वीक में 6 आवर्स काम करूं, ठीक है। इसी तरह मैं लोकली कोलैबोरेट करके मैं करूं या इंडिविजुअली करूं, इंडिपेंडेंटली करूं, मैं लोकल कोलैबोरेशंस करूं या इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करूं, ठीक है। मैं कहाँ से डाटा कलेक्शन करूं, कौन सा डाटा लूं, किस तरह की रिसर्च करूं, दिस इज ऑल अप टू मी, ठीक है। सो आई हैव बीन गिवन अ टारगेट कि दिस शुड बी योर आउटपुट एट द एंड। अब बाकी जो उसके डिसीजंस हैं उससे रिलेटेड आई एम फ्री टू मेक दोज डिसीजंस। सो दिस इज द ऑटोनॉमी ऑफ जॉब, ऑटोनॉमी इन जॉब। जितनी ऑटोनॉमी आपके पास ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि उतनी कंट्रोल कम होगा, ठीक है। सो उतनी कंट्रोल ओरिएंटेड जॉब कम होगी जितनी ऑटोनॉमी ज्यादा होगी। एंड ऑफ कोर्स ऑटोनॉमी इज आल्सो लिंक्ड टू द लेवल ऑफ द जॉब एट विच यू आर। जो लोअर रैंक जॉब्स होती हैं उनमें ऑफ कोर्स बाय बिल्ट वो इस तरह की होती हैं कि उनमें ऑटोनॉमी इतनी नहीं होती, दे आर मोर कंट्रोल ओरिएंटेड। और जो हायर लेवल की जॉब्स होती हैं, जैसे जो मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, दे आर हाई इन ऑटोनॉमी, और वहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो दे इंजॉय अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी और डिस्क्रिशन उनमें वो इंजॉय करते हैं कंपेयर टू द जॉब्स विच आर द लोअर रैंक जॉब्स। तो समटाइम्स ऑफ कोर्स आप नेचर ऑफ जॉब्स इस तरह का होता है कि आप उनमें सफिशिएंटली ऑटोनॉमी नहीं ला सकते, ठीक है। यू कैन नॉट ब्रिंग इन द ऑटोनॉमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वही कैशियर की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस केस में जो कैशियर है उसके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है। अगर उसके पास उसको चेक प्रेजेंट हुआ है तो ही हैज टू, अगर वो चेक क्वालिफाई कर रहा है तो उसने उस चेक को ग्रांट करना है, अगर वो नहीं कर रहा तो उसने उसको नहीं ग्रांट करना। उसके पास फिर एक लिमिट्स लगा दी गई हैं कि 5000 का अगर चेक है तो वो उसको वो खुद कर सकता है, ही कैन अप्रूव इट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट अगर 5000 के अमाउंट से ज्यादा चेक है तो उसको वो पहले उसको उस चेक को क्लियर कराना पड़ेगा फ्रॉम हिज बॉस, ठीक है। तो ये उसके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल्स हैं। लेकिन जो उसका बॉस है हायर लेवल के ऊपर है, वो फॉर एग्जांपल हर बैंक का या हर जगह की अपना रूल और पॉलिसी होती है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और एक मैं आपको जस्ट यू नो टू गिव यू एन आइडिया कि जो उसके हायर लेवल का मैनेजर होगा वो 5 लाख का चेक्स जो है वो प्रोसेस कर सकता है ऑन हिज ओन। तो वो उसका हायर लेवल था और उसके पास ज्यादा ऑटोनॉमी है, ठीक है। वो अप टू 5 लाख कर सकता है प्रोसेस, दिस इज ऑटोनॉमी। तो ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। समटाइम्स आप ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में नहीं है कि जो लो लेवल की जॉब्स हैं या कोई स्पेसिफिक जॉब्स उनकी नेचर इस तरह की है कि आप उनमें ऑटोनॉमी नहीं ला सकते या आप उनमें वैरायटी नहीं ला सकते। जैसे कैशियर की जॉब है तो ही हैज टू डू दैट थिंग, उसमें आप किस तरह कितनी वैरायटी ले आएंगे, ठीक है। और इसी तरह एक स्वीपर की जॉब है तो हाउ मच वैरायटी यू कैन ब्रिंग इन दैट जॉब, इट्स डिफिकल्ट ना, उसकी लिमिटेशंस हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट वर्क एज वेल। देन फीडबैक को हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस किया हुआ है कि आपका मैकेनिज्म जो है वो किस तरह का है। आपको सेल्फ जनरेटेड फीडबैक मिल रहा है या सुपरवाइजर आपको फीडबैक दे रहा है। सो द डिग्री टू विच कैरिंग आउट द वर्क एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बाय जॉब रिजल्ट्स इन द इंडिविजुअल ऑब्टेनिंग डायरेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस इज फीडबैक कि आपको पता चले कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो कंप्यूटिंग अ मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर, तो इस तरह से आप मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर बेसिकली क्या है कि आपका जितना स्कोर हायर होगा इसका मतलब है कि उतनी आपके मोटिवेशन का पोटेंशियल आपके अंदर ज्यादा होगा। और वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है आप ये देखें कि इन तीनों चीजों को कंबाइन किया, स्किल वैरायटी, स्किल टास्क आइडेंटिटी और सिग्निफिकेंस को, ठीक है। इनकी एवरेज और मल्टीप्लाइड बाय ऑटोनॉमी कितनी है और फीडबैक कितना है। तो ये ऑफ कोर्स जितनी ये सारी चीजें ज्यादा होंगी उतना ही आपका मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर भी ज्यादा होगा। So people who work on jobs with high core dimensions are generally more motivated, satisfied and productive. And this is what this model says, characteristics model, कि अगर ये conditions, ये characteristics किसी भी job में होंगी तो it is expected कि वहाँ पे जो लोग हैं वो उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे, उतने ही ज़्यादा वो satisfied भी होंगे और उतने ही वो motivated भी होंगे to work,
ठीक है। सो ये दिस इज व्हाट दिस मॉडल सेज कि अगर आपकी जॉब जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उसमें ये वाली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हों, दैट विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉइज आउटकम्स, यानी वो सेटिस्फाइड ज्यादा होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स क्या है कि प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। Why? Because employees ज़्यादा motivated होंगे. Then we have the job dimensions operate through the psychological states in influencing personal and work outcome variables rather than influencing them directly. तो ये हमने ये चीज़ देखी है कि ये जो outcomes हैं इनके साथ इन job characteristics का जो influence है, linkage जो है वो direct नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर आप वैरायटी दे रहे हैं और आइडेंटिटी दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, जॉब में ऑटोनॉमी है, फीडबैक है, तो आपकी डायरेक्ट आउटकम्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ गई। नो, दैट इज थ्रू द साइकोलॉजिकल स्टेट्स। वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो हमने पहले देखी थी और जो अभी हम दोबारा इसमें देख रहे हैं, ठीक है, कि जितनी वैरायटी ज़्यादा होगी, आइडेंटिटी ज़्यादा होगी और सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी टास्क में, ठीक है, वो किस चीज़ को अफेक्ट करेगी? एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क को। ऑफ कोर्स उससे आपको क्या होगा कि आपको आपका काम जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा जितनी, ठीक है। आप ये समझेंगे कि यार आपके माइंड में होगा कि यार एक तो मैं बड़ा सिग्निफिकेंट काम है जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं कर रहा हूँ, वो इन्हांस करेगा आपकी मोटिवेशन। फिर आपको ये कि यू आर कंप्लीटिंग अ फुल टास्क, आपके पास है, पूरा काम आपके पास है, तो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है ना। व्हेन आइडेंटिफाइबल टास्क हो, यू कैन फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यू कैन फील अ सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस। अगर आप एक छोटी सी चीज़, किसी कंपोनेंट का कोई छोटी सी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आपको मीनिंगफुलनेस नहीं लगेगी, ठीक है, और वो आपके लिए ज़्यादा मोनोटोनस और रेपिटेटिव भी होगा। आप उसको एंजॉय उस तरह से नहीं कर सकेंगे बिकॉज वो होल टास्क नहीं होगा, ठीक है। देन वैरायटी इसी तरह ही, जितनी वैरायटी ज़्यादा होगी उतनी आपको मीनिंगफुलनेस भी ज़्यादा लगेगी काम में, और इट विल लीड टू हायर इंटरनल वर्क मोटिवेशन, आपकी इंटेंसिक मोटिवेशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा जितनी ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। फिर ऑटोनॉमी जो है वो देखें कि ऑटोनॉमी जो है वो आपकी इन्फ्लुएंस कर रही है बेसिकली एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ द वर्क को, ठीक है, कि आप ऑफ कोर्स जितनी ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी उतनी आप अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, यू विल एक्सपीरियंस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव मोर डिस्क्रिशन, तो विद डिस्क्रिशन ऑल्सो कम्स अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो आप यू विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल दैट नाउ यू हैव टू डिलीवर, ठीक है। फिर ये फीलिंग आ जाती है कि नाउ यू हैव टू डिलीवर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स एंड यू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू गिव और यू प्रोवाइड पॉजिटिव आउटकम्स। सो ये भी फिर अगेन इन सब चीज़ों के साथ पॉजिटिवली लिंक्ड है, सारे आउटकम्स के साथ। एंड अगेन फीडबैक को हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि फीडबैक कैसे आपको पॉजिटिवली, जब आपको नॉलेज होगा रिजल्ट्स का, तो फिर एज अ रिजल्ट यू दैट विल लीड टू अगेन द ऑल दोज पॉजिटिव आउटकम्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि अगर हाई जैसे स्किल वैरायटी की हमने बात की तो उसकी एग्जांपल दी हुई है कि क्या कब स्किल वैरायटी कब होगी, हाई वैरायटी जॉब कब होगी और लो वैरायटी जॉब कब होगी। आई जस्ट रीड दीज थ्रू फॉर यू पीपल एंड देर ऑल, मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक एक इनकी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हाई वैरायटी इज द ओनर ऑपरेटर ऑफ अ गैरेज हु डज इलेक्ट्रिकल रिपेयर, रीबिल्ड्स इंजन्स, डज बॉडी वर्क एंड इंटरेक्ट्स विद कस्टमर्स। तो ये आप ये देखें कि एक ओनर ऑपरेटर है किसी गैरेज का, ठीक है, वो ये सारे काम कर रहा है, वो रिपेयर्स भी कर रहा है, वो इंजन्स को भी रीबिल्ड कर रहा है, बॉडी वर्क भी कर रहा है, ठीक है, और कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो हर चीज़ में, इन सारे कामों में जो वो अकेला कर रहा है उसमें क्या है कि डिफरेंट स्किल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। रिपेयर के लिए और टेक्निकल स्किल्स उसको चाहिए, ठीक है, इंजन रीबिल्ड करने के लिए डिफरेंट नेचर ऑफ टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, राइट। बॉडी वर्क के लिए ऑफ कोर्स फिजिकल आपको स्किल्स चाहिए, इसी तरह इंटरेक्ट करने के लिए कस्टमर्स के साथ में भी इंटरपर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो डिफरेंट नेचर ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क्स, देयरफॉर स्किल वैरायटी है इसमें, हाई वैरायटी जॉब है ये, मोनोटोनस जॉब नहीं है। Compared to a low variety job क्या होगी, a body shop worker who sprays paint 8 hours a day, when you're only painting all the time, day and night, तो ये क्या है, एक ही तरह की स्किल रिक्वायर्ड है। ऑफ कोर्स आपको पेंट करने के लिए पेंटिंग की स्किल चाहिए, लेकिन ओनली वन टाइप ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड, तो वैरायटी नहीं है, स्किल वैरायटी नहीं है इस जॉब में। देन टास्क आइडेंटिटी, हाई आइडेंटिटी इज a cabinet maker who designs a piece of furniture, selects the wood, builds the objects and finishes it to perfection,
ठीक है। और ऑन द अदर हैंड लो वैरायटी कब होगी? अ वर्कर इन अ फर्नीचर फैक्ट्री, लो टास्क आइडेंटिटी लो कब होगी? जब अ वर्कर इन अ फर्नीचर फैक्ट्री हु ऑपरेट्स अ लेथ टू मेक टेबल लेग्स। जैसे मैंने भी आपको यही सिमिलर एग्जांपल इससे रिलेटेड दी थी, ठीक है, कि एक बंदा वो है कैबिनेट मेकर है जो पूरा कंप्लीट जो पीस ऑफ फर्नीचर है वो डिजाइन कर रहा है फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है वो सिर्फ एक लेग्स बना रहा है टेबल की। तो इसमें हाई आइडेंटिटी और लो आइडेंटिटी क्या डिफरेंसेस हैं इस जॉब में। देन टास्क सिग्निफिकेंसेस, हाई सिग्निफिकेंसेस नर्सिंग द सिक इन अ हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। जब आईसीयू में एक नर्स है वो किसी पेशेंट को देख रही है तो शी नोज कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव नेचर ऑफ जॉब है, वर्क है, बहुत सिग्निफिकेंट काम है वो, ठीक है। और उसकी सिग्निफिकेंस टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू द पर्सन हु इज स्वीपिंग द हॉस्पिटल फ्लोर्स। उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी उस काम की? कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स क्लीनलीनेस में उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस तरह के आपको कई स्वीपर्स भी और यू नो आप उसको बेसिकली क्रिटिकल नहीं है, लेकिन ये वाली जॉब क्रिटिकल है व्हाट नर्स इज डूइंग, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज द डिफरेंस, सिग्निफिकेंस में ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद ऑटोनॉमी, अगर आप ये देखें कि हाई ऑटोनॉमी और लो ऑटोनॉमी जॉब्स को हम देख लेते हैं कि टेलीफोन हाई ऑटोनॉमी जॉब कब होगी? जब टेलीफोन इंस्टॉलर हु स्केड्यूल्स हिज और हर ओन वर्क फॉर द डे एंड डिसाइड्स ऑन द बेस्ट टेक्निक्स फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो आपको ये टारगेट तो मिल गया कि आपने कितनी इंस्टॉलेशंस करनी है, ठीक है। लेकिन क्या क्या टेक्निक है किस इंस्टॉलेशन के लिए, कब आपने कैसे उसको स्केड्यूल करना है, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है, कि आप कैसे प्रोसेस करना है, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू। यू हैव द ऑटोनॉमी टू डिसाइड ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू परफॉर्म दैट जॉब एंड दैट ऑटोनॉमी रेस्ट्स ऑन यू। सो दिस इज अ हाई ऑटोनॉमी जॉब। एंड opposite to this, low autonomy job क्या होगी? A telephone operator who must handle calls as they come according to a routine, highly specified procedures हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें low autonomy है इस job में। Then feedback. High feedback is when an electronics factory worker who assembles a radio and then tests it to determine if it operates properly, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मैकेनिज्म है ना, फीडबैक आपको मिलना चाहिए, वेदर दैट इज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है या मतलब जैसे इस केस में सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है, तो वो बंदा असेंबल कर रहा है रेडियो को और फिर उसको वो टेस्ट भी कर रहा है कि वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो ये क्या सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मैकेनिज्म है। तो फीडबैक होना चाहिए, वेदर दैट इज सेल्फ जनरेटेड और दैट इज गिवन बाय योर सुपरवाइजर या कहीं और से आपको वो सुपरवाइजर मिल रहा है विद इन द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप वो काम कर रहे हैं, वो कस्टमर्स के थ्रू फीडबैक का मैकेनिज्म है। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए और आपको फीडबैक मिलना चाहिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप इन्हें इवेलुएट भी होना है। अब लो फीडबैक जो है ऑन द अदर हैंड दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री वर्कर हु असेंबल्स अ रेडियो एंड देन routes it to a quality control inspector who tests and adjusts it. So that is basically a low feedback का mechanism है वो। Okay, then we see job design and scheduling. ठीक है, इसमें अब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल में तो हमने ये देख लिया कि मोटिवेटिंग जॉब पोटेंशियल हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। इट शुड बी क्लियर टू यू कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल का क्या मकसद है और उसका क्या मीनिंग है और क्या रीज़न है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके कंक्लूजन्स हैं, क्या उसकी एडेड वैल्यू है। ये चीज़ें अब आपको क्लियर होनी चाहिए अबाउट द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल कि वो हमने और फिर हमने उसको इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों पढ़ा। ठीक है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन, इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, फिर अब हम ये देखते हैं कि जॉब डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे ना, तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल भी आपको ये हेल्प करता है ना कि आपने जॉब्स को डिज़ाइन कैसे करना है, स्किल्स को कैसे डिज़ाइन करना है। सो ये सारी आपको एक किस्म की गाइडलाइंस हैं एज मैनेजर्स आपके पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास। ये गाइडलाइंस हैं कि इस तरह की अगर जॉब्स होंगी तो मैनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि वो ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स को जनरेट करेंगी और मैनेजर्स को जॉब्स को इस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो उनमें वैरायटी भी का एलिमेंट भी हो उनमें, ताकि मोनोटनी वगैरह उनमें ना आए, उनमें बाकी जो है सिग्निफिकेंस उनकी, फिर उनकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं फीडबैक का मैकेनिज्म हो और वो सारी चीज़ें हों। ऑफ कोर्स लिमिटेशंस हैं मैनेजर्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की लिमिटेशंस हैं, कुछ जॉब्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी होती हैं। तो अब अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अदर ऑल्टरनेटिव्स टू डिजाइनिंग योर जॉब। ठीक है, आप उसमें जॉब में को डिजाइन कैसे कर सकते हैं सो दैट टू कीप द एम्प्लॉइज मोटिवेटेड ऑन द होल। उसमें एक है जॉब रोटेशन विच इज द पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ अ वर्कर फ्रॉम वन टास्क
टू अनदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि शिफ्टिंग कर रहे हैं वर्कर्स की फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली आप एक जॉब कोई काम अगर आप एक बंदा पहले पर्सनल लोन्स में था किसी बैंक में, तो अब आप उसको पर्सनल लोन से कंज्यूमर लोन में मूव कर दें, तो ये क्या है, फ्रॉम वन टाइप ऑफ टास्क ही हैज बीन मूव टू द अदर टाइप ऑफ टास्क। व्हाई? बिकॉज उससे क्या होगा कि फिर अगेन वैरायटी आएगी, स्किल वैरायटी इसमें आ गई। ठीक है, और जो है वो उसमें मोनोटनी नहीं रहेगी, वैरायटी आ जाएगी। Might improve the motivation because sometimes you are fed up and get tired of doing the same thing again and again and again. Although some people do prefer the similar repetitive nature of work, वो उसमें ज़्यादा comfortable feel करते हैं। तो again implications managers के लिए यही है कि उनको इन सब चीज़ों को understand करना चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअल्स को, उनकी नीड्स को, डिमांड्स को, और फिर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड शुड ट्राई टू क्रिएट अ गुड मैच एंड अ बेस्ट फिट बिटवीन द टू, बिटवीन द क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनमें कोई फिट तलाश करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। अब जब रोटेशन आप करते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि आपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं कि शिफ्ट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बड़ी रोटेशन की पॉलिसी होती है कि हर साल में कोई या मोर देन 2 years आप एक जॉब पे नहीं रह सकते। ठीक है, या आप एक डिस्क्रिप्शन पे या एक आप टाइटल आपको नहीं हो सकता फॉर 2 years फॉर मोर देन 2 years। ठीक है, तो यू विल बी रोटेटेड, आपको शिफ्ट कर देंगे, किसी और जॉब में भेज देंगे, कहीं और ऑपरेशंस मैनेजर का उसको क्रेडिट मैनेजर लगा दिया, या कोई अकाउंट्स मैनेजर था उसको ऑडिट्स में भेज दिया। तो ये दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रोटेशन की एग्जांपल्स हैं ये। ऑफ कोर्स इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं रोटेशन के और नेगेटिव्स भी हैं। तो ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी। हाउ? बिकॉज जितनी रोटेशन ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा कि डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मूव कर रहे होंगे, दे विल बी चेंजिंग द पोजीशंस, और उनको हर एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस हो जाएगा डिफरेंट जॉब्स करने का। तो अंडर द कंडीशंस अगर एक एम्प्लॉय किसी एक जॉब में एब्सेंट है कभी, तो दूसरा एम्प्लॉय उसकी जगह उसको भी उस जॉब का पता होगा, उसको नॉलेज होगा उस जॉब का, और वो भी उसको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, या समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जब ले ऑफ वगैरह उनको करने पड़ते हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं विद अ फ्यूअर एम्प्लॉयज़ वो मल्टीपल जॉब्स उनसे करवा लेती हैं, उनको ओवर टाइम पे कर दिया। इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन द फ्लेक्सिबिलिटी। देन इट इंक्रीजेस द ट्रेनिंग कॉस्ट, दैट इज द डाउन साइड, कि जब आप रोटेट करेंगे, एक एम्प्लॉय को किसी नई जगह पे भेजा, पर्सनल लोन वाले को कंज्यूमर लोन पे भेजा, ऑफ कोर्स उसको कुछ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी जब वो फर्स्ट टाइम उसके ऊपर आएगा, उसने वो स्किल सीखनी है, उसने नॉलेज लेना है उस काम का, प्रोसेसिंग का नॉलेज लेना है, मे बी रिक्वायर्स फॉर्मल ट्रेनिंग या इनफॉर्मल ट्रेनिंग उसको चाहिए होगी। लेकिन ऑफ कोर्स जब नया वर्कर आएगा तो उसकी एक तो ये चीज़ है कि आपको कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरा ये है कि जब वर्कर कोई नया आएगा तो उसको उसकी प्रोडक्टिविटी विल फॉल इनिशियली, दैट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, क्योंकि अभी उसने काम सीखना है। जब वो काम सीख लेगा, जब उसकी एक्सपर्टीज हो जाएंगी, उसके ऊपर डेवलप हो जाएंगी, एक्सपर्टीज हो जाएंगी, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाएगा, ओवरऑल उसकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएंगी, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। बट इनिशियली द प्रोडक्टिविटी कैन फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ जॉब रोटेशन। एंड ऑफ कोर्स जब आप नई जगह पे जाते हैं, नए डिपार्टमेंट में जाएंगे, को वर्कर्स आपके नए होंगे, आपका सुपरवाइजर नया हो सकता है, तो यू माइट रिक्वायर इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, जो सोशलाइजेशन का टाइम होता है या एडजस्टमेंट का पीरियड होता है, वो आपको चाहिए होगा। तो ये इसके पॉजिटिव और डाउन साइड्स हैं। दूसरा जो जॉब डिजाइन का तरीका है वो जॉब इनलार्जमेंट है, कि आप थ्रू जॉब इनलार्जमेंट करें। जॉब इनलार्जमेंट बेसिकली क्या है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ ओनली मेल सॉर्टर में भी आस्क्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मेल, तो इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स है, यानी कि कोई भी आपकी वैरायटी तो स्किल्स में आ रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, बट लेकिन कोई इसमें एडेड वैल्यू नहीं है। स्किल्स जो हैं वो सेम लेवल की स्किल्स हैं। ठीक है, सेम लेवल ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा पहले मॉपिंग कर रहा है फ्लोर की, तो उसको कहा जाए कि तुमने स्वीपिंग भी करनी है, या उसको कहा जाए कि तुमने डस्टिंग भी करनी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वैरायटी तो आ रही है, ठीक है उसकी, लेकिन स्किल सेट जो है वो दैट इज द सेम। तो जॉब वैरायटी तो है लेकिन स्किल वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो है वो डज नॉट स्ट्रेच द एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल एनी मोर, या उसको कोई डिफरेंट स्किल सेट नहीं चाहिए है इसके लिए, वही लेवल ऑफ स्किल्स, वही बंदा उसको विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनीथिंग ही कैन डू इट। सो नो एडिशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दिस इज इट। जैसे अब यहाँ पे मेल सॉर्टिंग की एग्जांपल है कि एक बंदा जो पहले मेल्स को सॉर्ट कर रहा है, अगर आप उसको कहें कि तुम ही डिस्ट्रीब्यूट भी करो मेल को, तो उसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब है, कि उसकी जॉब तो एक्सपेंड कर गई है, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि वो वैरायटी उसमें कोई नहीं आई है, स्किल वैरायटी उसमें नहीं है, इनलार्जमेंट हो गई है जॉब में।
so it does not have very fine results. But the job enrichment on the other hand is the vertical expansion of jobs. ठीक है, उसमें क्या है, स्किल वैरायटी इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो जैसे हम ये कहें कि जो बंदा पहले कंज्यूमर लोन में था और कंज्यूमर लोन में अगर कोई कार फाइनेंसिंग को देख रहा है तो हम उसको कहें कि तुम होम फाइनेंसिंग को भी देखो. तो होम फाइनेंसिंग की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो इसमें क्या है कि डिफरेंट नेचर ऑफ स्किल्स शायद उसको चाहिए होगा, उसको लर्निंग और करनी पड़ेगी और स्किल्स चाहिए होंगी, तो इसमें उसकी जॉब में वैरायटी आएगी और एनरिचमेंट होगी उसकी जॉब में. ठीक है, तो दैट विल बी द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, जो आपकी स्ट्रेच करता है आपकी स्किल्स को फर्दर. ठीक है, सो यू रिक्वायर एडिशनल स्किल्स टू परफॉर्म दैट जॉब, सो दैट इज जॉब एनरिचमेंट. ठीक है, तो एनरिचमेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस. सो एनरिचमेंट, जॉब एनरिच करने के लिए और भी गाइडलाइंस हैं, सच एज आपको उसके लिए ज़ाहिर है ऑटोनॉमी भी चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए, आपको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास फील हो, देन यू से दैट द जॉब्स आर एनरिच्ड. सो गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है फॉर एनरिचिंग अ जॉब, सच एज कंबाइन करें, डिफरेंट टास्क्स को कंबाइन करें, क्रिएट नेचुरल वर्क यूनिट्स, यानी कि वर्क यूनिट जिसमें आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकें. सो इट्स अ कंप्लीट एक वर्क यूनिट हो. ठीक है, जिसमें आइडेंटिफाई आप कर सकें, आपके आइडेंटिटी को और सिग्निफिकेंस को इन्हांस करेगा. देन इस्टेब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप्स, कस्टमर्स के साथ जैसे आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हों. ठीक है, दैट विल अगेन इंक्रीज द स्किल वैरायटी को इंक्रीज करेगा. आपको फीडबैक, ऑफ कोर्स जब आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्ट, तो आपको फीडबैक मैकेनिज्म इंप्रूव करेगा. देन ओपन फीडबैक चैनल्स दैट विल अगेन इन्हांस द फीडबैक, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस और दिस इज गोइंग टू एनरिच द जॉब्स. There are some other alternative work arrangements as well that we are going to see here. One of them is the flexi time. Why alternative work arrangements? Because देखें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये देती हैं ताकि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करें और लोगों को, हम यही देख रहे हैं कि मोटिवेट कैसे करना है लोगों को. तो पहले तो हमने ये देखा कि जॉब्स को आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट हमने तरीके देखे रीडिज़ाइन करने के, ये भी रीडिज़ाइन करने वाली चीज़ ही है वर्क को. ठीक है, वर्क अरेंजमेंट्स हैं ऑल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू रीडिज़ाइन द जॉब एंड इन ऑर्डर टू कीप मेक दैट जॉब्स मोर अट्रैक्टिव और कीप द जॉब्स मोर मोटिवेटिंग फॉर द एम्प्लॉइज. तो फ्लेक्सी टाइम इज़ वन ऑफ दैम. इसमें क्या है कि एम्प्लॉइज़ को एक कॉमन कोर होती है एट विच द एम्प्लॉइज हैव टू वर्क और एट दैट टाइम द एम्प्लॉइज हैव टू बी देयर. ठीक है, सो एम्प्लॉइज हैव, बट अदर देन दैट कॉमन कोर एम्प्लॉइज के पास डिस्क्रिप्शन होती है कि वो जो रेस्ट ऑफ द वर्किंग आवर्स हैं उनको वो अपनी ऑन देयर ओन डिस्क्रिप्शन एंड एज पर देयर ओन कन्वीनियंस वो उनको फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ये देखें एक एग्जांपल इसमें अवेलेबल है. ये देखें, ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई फ्लेक्सी टाइम ऑफर करती है तो देखें उसका कोर टाइम, कॉमन कोर क्या है, 9 AM till 3 PM उसने अपनी कॉमन कोर रखी हुई है और इन बिटवीन 1 घंटा लंच का है फ्रॉम 12 to 1. तो 9 से लेके 12 तक 3 घंटे ये और फिर 1 से लेके 3 तक, तो 12 से 1 बीच का 1 घंटा निकल गया, बाकी 1 से लेके 3 तक 2 घंटे वो. ठीक है, तो ये 5 घंटे आपके कॉमन कोर के बन गए. ठीक है, तो इससे पहले फिर 6 बजे से लेके, सो द ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली, इसकी टाइमिंग्स क्या है, इट स्टार्ट्स एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इट एंड्स अप एट 6 o'clock इन द इवनिंग. ठीक है, तो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ऑर्गेनाइजेशन ओपन है. 9 से 6 तक कोर टाइम है, यानी उस टाइम पे आपको होना ही होना है ऑर्गेनाइजेशन में. ये टाइम आपने 6 hours लगाने हैं. उसके बाद जो बाकी है आपके 2 hours हैं वो आपने कैसे एडजस्ट करने हैं, वो आप मॉर्निंग में करें या इवनिंग में, मतलब सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लगा लें या शाम को 3 से 6 तक लगा लें या इस तरह से कर लें जब मर्जी. तो ये एक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना. मतलब कुछ लोग हैं जैसे स्पेशली हेल्पफुल फॉर द फीमेल्स जो पार्ट टाइम काम कर सकती हैं, फुल टाइम काम नहीं कर सकती, या जिन्होंने कंबाइन करनी होती हैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने वर्क लाइफ को. जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग मदर्स हैं जिनके हुज चिल्ड्रन और हुज किड्स आर स्कूल गोइंग एंड दे आर ऑफ फ्रॉम स्कूल बाय 3 o'clock. तो वो मदर्स क्या कर सकती हैं कि बच्चों को सुबह 7 o'clock स्कूल ड्रॉप करके एंड देन दे कम टू देयर ऑफिस एंड दे अपने 8 hours 3 o'clock तक, सुबह 6-7 बजे से लेकर 3 बजे तक वो लगाएं अपने 8 hours and then at 3 o'clock they are free to and they can go home, take their children home and they can spend time with their family. अपनी फैमिली को देख सकती हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को they can see. तो इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं वो इस तरह से हेल्पफुल हैं. या अगर किसी को इवनिंग वाला टाइम सूट करता है तो अदर देन दैट कोर इवनिंग वाला टाइम लगा सकता है.
बट ऑफ कोर्स हर जॉब में आप अगेन इसके डिसएडवांटेजेस यही है कि फ्लेक्स टाइम आप हर जॉब में ऑफर नहीं कर सकते. जो टोटली कस्टमर रिलेशनशिप ओरिएंटेड जॉब्स हैं, ठीक है, उनमें ऑल द टाइम इज द कोर टाइम. ठीक है, और आप उसमें बैक ऑफिस में नहीं काम कर सकते और आप उसमें इस तरह से की फ्लेक्सिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन आप इस वक्त आ रहे हैं, द अदर डे यू आर कमिंग एट दिस टाइम एंड थिंग्स लाइक दैट. वहां पे शायद ये पॉसिबल ना हो. एडवांटेजेस इसके यही हैं कि स्टडीज ने यही रिपोर्ट किया है कि फ्लेक्स टाइम जो है इट लीड्स टू रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म, और प्रोडक्टिविटी, बेटर टर्नओवर, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लेक्स टाइम से आप मैनेज कर सकते हैं बेहतर अपने ओवरऑल वर्किंग आवर्स को. ठीक है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वर्किंग आवर्स को आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट it can result in improved productivity. Then the second alternate जो वर्क अरेंजमेंट है, that is telecommuting. तो टेलीकम्यूटिंग में आपके पास क्या होता है कि एम्प्लॉइज आर वर्किंग एट होम, ठीक है, फ्रॉम देयर कंप्यूटर्स, दैट इज लिंक्ड टू देयर ऑफिस. ठीक है, तो अब कैटेगरीज किस तरह की जॉब्स में टेलीकम्यूटिंग होती है. सो ऑफ कोर्स इट इज काइंड ऑफ वर्चुअल अरेंजमेंट किस्म की आप समझ लें, जिसमें आप ऑफ साइट भी आप इसमें काम कर सकते हैं या ऑफ कैंपस भी आप इसमें काम कर रहे हैं. आप अपने घर से काम कर रहे हैं, आप कहीं से भी एनीवेयर, बट ऑफ कैंपस और ऑफ ऑफिस यू आर वर्किंग. ठीक है, मोबाइल एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टास्क हैं, या प्रोफेशनल अदर नॉलेज रिलेटेड टास्क हैं जो उनमें स्पेसिफिकली हो सकती है. कोई एनालिस्ट की जॉब है या कोई और इस तरह की नेचर ऑफ वर्क है जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं वहाँ पर, या जो जहाँ पे ज़्यादा आपका काम इस तरह का है कि आपने कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, तो आप वो यू कैन वर्क इट एट होम एज वेल. ठीक है, तो वहाँ पे टेलीकम्यूटिंग उस तरह की जॉब्स में स्पेसिफिकली पॉसिबल है. अगेन इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू ऑफर. तो एडवांटेजेस में तो आप ये देखें कि लार्ज लेबर पूल आपके पास आ गया. जब आप ये ऑप्शन देंगे कि यू कैन वर्क एट होम एज वेल, तो देयर इज अ लार्जर लेबर पूल फ्रॉम विच यू कैन मेक योर सिलेक्शंस और यू कैन मेक बेटर. जब जितना पूल आपके पास लार्जर होगा, उतनी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं टू सिलेक्ट बेटर वर्कर्स. ठीक है, इसी तरह ही फिर हायर प्रोडक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड बिकॉज अगेन एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है वर्कर्स को. ठीक है, कि दे कैन वर्क एट होम, तो उससे क्या होगा कि वो बेहतर मैनेज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है. एज अ रिजल्ट टर्नओवर इसी की वजह से कम हो सकता है, मोरल इंप्रूव हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस द सेम कि आप एक बिकॉज देखें एक फैसिलिटी है ना जो आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट आपका मोरल भी इंप्रूव करेगा. फिर ऑफिस के टर्म्स में इसका क्या बेनिफिट है ऑफिस को कि रिड्यूस्ड ऑफिस में स्पेस कम हो जाएंगी. कि जब एम्प्लॉय ने अगर ऑफिस से वर्क नहीं करना, आपकी उसके साथ ये अरेंजमेंट है कि हिल वर्क एट होम, तो उसी ऑफिस स्पेस को आप किसी और मकसद के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस इसके यही हैं कि एक तो लेस डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ कोर्स होती है. आपका जब सुपरवाइजर के साथ जब आप ऑफिस में रेगुलरली नहीं आ रहे, फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे, तो सुपरवाइजर को समटाइम्स माइट फाइंड डिफिकल्ट कि वो आपको प्रॉपरली एडिक्वेटली सुपरवाइज कर सके. ठीक है, नेक्स्ट इज के डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट हो जाता है जहाँ पे टीम वर्क इन्वॉल्व होता है. जहाँ पे 4-5 लोगों का प्रोजेक्ट है, आप यू आर वर्किंग एट होम, बाकी टीम मेंबर्स के साथ वर्चुअली भी कम्युनिकेशन आपको पता है इतनी रिच नहीं होती ऑनलाइन वगैरह, उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं. जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, तो टीम वर्क में इस तरह के इशूज फिर अराइज कर सकते हैं. देन डिफिकल्ट टू एवेलुएट नॉन क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस. सो द परफॉर्मेंस दैट इज non-quantitative, it might be difficult to evaluate that because वहाँ पे qualitative जो performance है उसमें subjective judgments आ जाती हैं. तो when you're not working at home, when you're working at home, then it becomes difficult to make those assessments आपकी जो subjective हैं. फिर इसमें एक चीज़ और ये देखी गई है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब है कि जो द वर्कर्स हु आर नॉट ऑन साइट, तो वो ऑफ कोर्स अपने सुपरवाइजर, बॉस और लोगों की नज़रों में नहीं रहते, तो इट कुड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस देयर परफॉर्मेंस इवेलुएशंस. ठीक है, दे माइट बी एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल बट यू नो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब भी इसमें हो सकता है. ओके, देन वी हैव द जॉब शेयरिंग विच इज एन अदर ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट. सो जॉब शेयरिंग में क्या है कि 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो शेयर करते हैं इसमें जॉब्स को. तो बड़ी इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट है ये. इसमें बेसिकली देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बाय इस तरह से, क्योंकि मल्टीपल लोग अब एक काम कर रहे हैं. मतलब इसमें क्या है कि एक ही काम है तो वो 2 लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं. जैसे पर्सनल लोन वाला काम है, तो एक पर्सनल लोन ऑफिसर जो है वो उसका काम 2 लोग कर रहे हैं एक ऑफिसर का. ठीक है, तो वो दोनों यानी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, हाफ हाफ कर रहे हैं. वो उन्होंने इस तरह से कोई अरेंजमेंट कर ली कि जैसे फॉर एग्जाम्पल arrangement between 2 people that one will come on Monday and Tuesday, the other one will come on Thursday and Friday, and Wednesday they will do alternate. ठीक है, तो ये क्या है, जॉब शेयर्ड है.
और वो ऑफ कोर्स उस जॉब के फिर बेनिफिट्स और पैकेज एवरीथिंग विल बी शेयर्ड in the same proportion in which the job is shared. ऑर्गेनाइजेशन को इसका क्या बेनिफिट होगा? ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होगा कि अब 2 लोग हैं तो इसका मतलब है 2 हेड्स हैं, सो डाइवर्सिटी ज्यादा हो गई, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी. जब मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल गई, ठीक है? अब नाउ इट हैज 2 people फॉर द सेम जॉब, ठीक है? और ऑफ कोर्स इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस तरह के अरेंजमेंट्स करने से ले ऑफ्स वगैरह भी अवॉइड हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है. एंड दैट इज़ वाई जापान में क्योंकि ले ऑफ्स करना इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह की अरेंजमेंट्स को ज़्यादा देख रहे हैं. This type of arrangement is specifically helpful for the retired workers and women की जैसे हमने एग्जांपल दी कि उनको वर्क लाइफ इश्यूज होते हैं बैलेंस करने के, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है जो ऑल डेज 40 आवर्स अ वीक जो काम नहीं कर सकती, कि इफ़ दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि 20 आवर्स अ वीक वो काम कर लें और 20 आवर्स कोई दूसरा ढूंढ लें, कोई और कर ले, तो इट कैन बी हेल्पफुल. इसी तरह रिटायर्ड पीपल हैं हु कैन नॉट वर्क 40 आवर्स अ वीक, उनके लिए भी इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी जॉब शेयरिंग की, कि कुछ वो कर लें, कुछ कोई और उनके साथ कर ले. लेकिन इसमें डिफिकल्टी यही है कि आपको पेयर्स मिलने डिफिकल्ट हो जाते हैं, कि आपकी ही जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स का आपको कोई पेयर भी मिल जाए, ठीक है? कि जैसे अगर आपको ये सूट करता है कि एक सुबह 8 आवर्स अ डे वर्क करना है, तो उसमें से 4 आवर्स आप करेंगे और 4 आवर्स कोई दूसरा पेयर करेगा. लेकिन जो दूसरा बंदा है वो भी मॉर्निंग में ही करना चाहे और आप भी मॉर्निंग में ही करना चाहते हो, ठीक है? तो ये मैच करना उनकी रिक्वायरमेंट्स को पेयर्स की, दैट कैन बी अ डिफिकल्टी. बट अदरवाइज आपने देखा कि इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस टू ऑफर. परफॉर्मेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी. एक तो ये चीज़ है, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं मैनेजमेंट के लिए, ये 2 चीज़ें अब हम देखेंगे. वी आर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम फॉर टुडेज लेक्चर, तो व्हाट वील डू इज़ दैट वील कंटिन्यू विद दिस with this one slide. हम इसी को परफॉर्मेंस, एबिलिटी और मोटिवेशन को मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में बताऊंगी, और थोड़ा सा जब इसका रिकैप भी करेंगे. तो फॉर नाउ जॉब रीडिज़ाइन वाला जो हमारा एस्पेक्ट है दैट इज़ फिनिश्ड, कि आपने वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करना है थ्रू जॉब रीडिज़ाइन. और जॉब रीडिज़ाइन की हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस देखी हैं कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस को अवेलेबल हैं और किस किस तरह से वो उनको कंबाइन कर सकती हैं एंड ऑफर कर सकती हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट to make the organization an attractive place for the employees and to keep their motivation levels high. What are the different steps that the organizations can take, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने देखी हैं. With this I say you goodbye for today, and we meet you again for the next lecture. Thank you. Allah Hafiz.